कर्नाटक में कुमारस्वामी हुकूमत की तश्कील से ही चले आ रहे कर्ज माफी का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरमाई इजलास के दौरान दूसरे दिन भी बीजेपी अरकान ने ऐवान में जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ किसानों को तसल्ली दे रही है, जबकि आज तक कर्ज माफी का फायदा किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। बीजेपी अरकान ने पिछले 6 महीने में 250 किसानों की खुदकुशी का मामला उठाते हुए कहा है कि कुमारस्वामी हुकूमत बिना कुछ किए ही वाहवाही लेना चाहती है। हालांकि कांग्रेस अरकान का कहना है कि काफी किसानों को कर्ज माफी का फायदा पहुंच चुका है, लेकिन अफसरान की लापरवाही से अभी कुछ किसान बाकी रह गए हैं, जिन्हें बहुत जल्द फायदा दिलाया जाएगा। इस दौरान असेंबली में एमएलए के फंड को 2 करोड़ से 5 करोड़ सालाना करने का मुद्दा भी उठा। This government from last 1 week in this session. Unfortunately, about loan waiver, from morning to evening, the discussion was going on. Intentionally, they are not ready to reply properly. Finally, when I am asked about the nationalized bank loan waiver issue, is not at all ready to give any proper reply. Instead of that, you are mingle with nationalized bank like that, he told. And his arrogant behavior, we have condemned that arrogant behavior. And our leaders also told the speaker, he must apologize first to Chief Minister, then reply properly about loan waiver. That's our demand, and we have discussed with the speaker also. The Karnataka government, Congress and JDS saying something, but really nobody farmer getting the loan waive. So we demanding how much money you are spending for the loan waive. That you have to tell. At what time? You will in the manifesto you told within 24 hours we will make loan waive. So after 6 months, there is only few hundreds loan waive. Another 24 lakhs people are waiting for this loan. So nobody they got the loan waive. That's why you have to tell to the public and in the assembly when is the loan waive. Today or tomorrow or 1 month or 6 months, that I have to tell. Otherwise, we will not allow to run the assembly, because already 300 farmers were suicide. So that is going on. This government is not doing anything, only saying the loan waive, but not doing anything. That's why we are protesting second day also. See, protesting is a right of a political party in democracy, in parliamentary democracy. But please understand, this session is just for 10 days. And BJP has participated, cooperated all along. So hardly 2 days have remained, today and tomorrow. It is better that they come in, participate in discussions, deliberations. They highlight the issues which have been facing. It may be farmers, it may be labor, it may be workers, it may be people, and try to convince the government and get them resolved instead of protesting. I don't think they are going to achieve anything by protesting. It is better they come in. In parliamentary democracy, it sometimes happens that you say something, the ruling party says something. It doesn't mean that you are enemies. It happens. So it has to end. So I think Chief Minister, Congress party has a lot of respect for everybody, understand? We are a democratic setup and we have to go join our hands together for the overall development of the state. So I don't think that BJP should continue their protest. Instead, they should come to the house and participate. तो कर्ज माफी बड़ा मुद्दा कर्नाटक में, और इसी को लेकर के विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। इजलास के दौरान दूसरे दिन भी बीजेपी अरकान ने ऐवान में जमकर हंगामा किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ किसानों को तसल्ली दे रही है, कर्ज माफी नहीं हुई। जबकि कांग्रेस का दावा है कि कर्ज माफी हो रही है, लेकिन कुछ अफसरान की लापरवाही से ठीक तरह से फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। जयपाल शर्मा इस वक्त हमारे रिपोर्टर बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी जयपाल, ये जानना चाहेंगे आपसे किसकी बात में ज्यादा सच्चाई है? कांग्रेस का दावा है कि जो इस इत्तेहाद का हिस्सा है कि
कर्ज माफी हो रही है लेकिन अफसरों की लापरवाही है। क्या वाकई जमीन पर कर्ज माफी होती दिख रही है? एक बड़ा वादा था इलेक्शन के दौरान कांग्रेस का, कम से कम खास तौर से। जी देखिए, किसानों के कर्ज माफी का जो मुद्दा है वो जैसे ही कुमारस्वामी सरकार ने शपथ ली थी उसके तुरंत बाद ही भारतीय जनता पार्टी और खासकर येदियुरप्पा ने इसको लेकर के चुनौती दी थी कि अब 24 घंटे के अंदर में फार्मर्स के लोन माफी की घोषणा करे। हालांकि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कुछ वक्त जरूर लिया लेकिन उसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी थी। इस वक्त अगर हम देखें तो लगभग 44 लाख किसान ऐसे हैं जिनको कि इस लोन वेव का फायदा मिलना है। लेकिन सच्चाई अगर हम देखें तो जैसा येदियुरप्पा बतलाते हैं कि सिर्फ अभी तक 50 करोड़ रुपए ही इसका लोन वेव किया गया है। हालांकि कुमारस्वामी है, उनका मानना है कि नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो पूरी तरह से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और इस तरह से ये जो कर्ज माफी की जाएगी वो चरणबद्ध तरीके से होगी। और इसी मुद्दे पर बीजेपी लगातार सरकार को घेरती चली आ रही है और ये क्रम लगातार चलता आ रहा है। और पिछले 2 दिनों से बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक हुई। आज भी कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 3 बार एडजर्न करनी पड़ी इसी मुद्दे के ऊपर में। कल तो इस तरह से कुमारस्वामी और येदियुरप्पा के बीच में बहुत तीखी नोकझोंक देखी गई असेंबली के अंदर में। लगातार येदियुरप्पा इस बात के लिए बोलते हैं कि अगर आपने इस चीज की घोषणा की है तो आप कीजिए, आप सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं। और जहां तक हम बात करें सच्चाई की तो जो रेवेन्यू मिनिस्टर है उन्होंने असेंबली के अंदर में ही कहा था कि अभी तक जो है बहुत ज्यादा किसानों को इसका वास्तविक फायदा नहीं मिल पाया है। लेकिन फिलहाल उनके पास ऐसी 17 लाख एप्लीकेशन हैं जिसके ऊपर में लगातार बैंकों के साथ डिस्कशन चल रहा है और जल्द ही वो किसानों को बेनिफिट दे पाएंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि एक बार में सरकार कर दे वो भी संभव नहीं है क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था को भी देखना पड़ता है। सरकार चाहती है कि चरणबद्ध तरीके से हो, लेकिन वो मरहलेवार हुकूमत चाहती कि कर्ज माफी हो और बीजेपी की मांग है कि एक बार में कर्ज माफी की जाए। सरकार को अपना वायदा याद करा रहे हैं बीजेपी के अरकान असेंबली। अब देखना ही होगा कि इस पर सियासत और कहां तक जाती है और 2019 से पहले क्या ये एक सियासी इशू बनता है कि नहीं, खासतौर से कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया आपका जयपाल शर्मा। किसान इशू के बीच बीजेपी अरकान ने एमएलए फंड का भी इशू उठाया। उनकी मांग है कि सालाना फंड को 2 की जगह 5 करोड़ रुपए किया जाए। About this matter, there was a discussion in MLAs forced for the enhancement of the present local fund to the tune of 5 crores, as it is given to the Lok Sabha members. So, but the government has not actually clearly answered this question, but they have assured that there will be some enhancement to the present whatever the amount is fixed for the MLAs. So it is they have promised to raise it to 2 crores. अंग उठाया वो सही है। मैं एमपी हूँ ना, एमपी को ये 5 करोड़ मिलता है। वहाँ हम मांग रहे हैं हमको हर साल 25 करोड़ रुपए देने के लिए। हम मोदी को हर बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, अभी तक मोदी हाँ करने के लिए तैयार नहीं। अभी यहाँ तो मुद्दा उठाया वो सही है, वो भी 5 करोड़ एमएलए को 5 करोड़ करना चाहिए। क्यों आज सब रेट बढ़ा हुआ है ना, आज सीमेंट का रेट बढ़ा हुआ है, स्टील का रेट बढ़ा हुआ है और एसआर रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए वो उनका मांग सही है। डेफिनेटली हम लोग तो स्वागत करते हैं, पहले से हमारा डिमांड है 2 करोड़ से 5 करोड़ करना बोल के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ही ये डेवलपमेंट काम रहता है। पानी का रहते, ड्रेन्स, कंक्रीट रोड्स, हॉस्पिटल्स डेवलपमेंट्स, एजुकेशन पर्पस, ऐसे बहुत ही क्षेत्र में हम लोग काम करना पड़ता है। 2 करोड़ बहुत ही कम होता है, इसके वास्ते 5 करोड़ दिए तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके वास्ते हम लोग ये स्वागत करते हैं। सब लोग अपेक्षा भी है, हम लोगों का पहले से हम लोग डिमांड है 5 करोड़ करना बोल के। कुमारस्वामी काबीना तौसी में शुमाल कर्नाटक को भी नुमाइंदगी मिलने जा रही है और रियासती हुकूमत ने इलाकाई अरकान की मांग को दुरुस्त बताते हुए कहा है कि अगली तौसी में यकीनन उनकी मांग पूरा करने पर गौर किया जा रहा है। 22 दिसंबर को होने वाली कुमारस्वामी काबीना की तौसी से पहले कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडरान से बातचीत के बाद नए वुज़रा के नामों पर आखिरी मुहर लगाएगी। वाज़ेह रहे कि इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के बाद से ही कांग्रेस के कई सीनियर अरकान
नाराज चल रहे हैं, वहीं मुस्लिम तबके को भी बेहतर नुमाइंदगी नहीं मिलने का मुद्दा उठता जा रहा है। हालांकि दोनों जमातें इससे निपटने के लिए वजारत के साथ ही अपने अरकान को बोर्डों की जिम्मेदारी देकर के मुतमईन कर सकती हैं। We are all going to Delhi today, and we've already told the legislature party that 22nd is the day of expansion. This has been decided by the coordination committee with both party leaders in consultation. So I'm sure 22nd will be the date of expansion. सबके साथ बात करके JDS कांग्रेस दोनों लीडर्स और हमारा वरिष्ठ नेता राहुल जी के साथ भी बात करके 22nd फिक्स हुआ है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ 22nd को कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा। जिनसे कुछ नॉर्थ ले वो नाराज बताया जा रहा है कि उनको एक्सपेंशन भाग जाएगी। नहीं, वो उनके बात भी सही है, मैं उनका बात गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री में नॉर्थ कर्नाटका के जो MLAs को रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसको ठीक करने का और उनको न्याय देने का काम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ इस एक्सपेंशन में वो हो जाएगा। इधर आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर मुजाहरों का दौर जारी है। एक तरफ जहां तेलुगुदेशम पार्टी ने मोदी हुकूमत पर तफरीक बरतने का इल्जाम लगाया है, वहीं वाईएसआर कांग्रेस ने टीडीपी पर सियासी मफाद का इल्जाम लगाया है। पार्लियामेंट के बाहर हुए मुजाहरे के दौरान टीडीपी अरकान ने कहा कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे लगातार मुजाहरा जारी रहेगा। वहीं इस्तीफे की वजह से वाईएसआर कांग्रेस के 2 अरकान समेत कुल 3 लोग ही एहतजाज करते नजर आए। हमारी कोशिश यही है कि उनसे हमारे ये जो मांगे हैं उनको पूरा करें, पर आप देख रहे हो कि सरकार अभी डिस्कशन से भी भाग रही है। दोनों सदन में कहीं पे भी कुछ भी कोई भी हिस्सा, राफेल का मामला हो, एग्रीकल्चर का मामला हो, या हमारे नेचुरल जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, तितली हो, गजा साइक्लोन हो, किसी के ऊपर भी चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। अगर उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश हम करना चाहते हैं तो ये एक तरीका है, और ये लगातार जारी रहेगा। जब तक हमारा पूरा नहीं होगा तब तक ये दबाव लगातार करते रहेंगे। आज टीडीपी अकेले नहीं है, टीडीपी के साथ पूरी अपोजिशन आज खड़ी है, तो पूरा संगठन एक मिलकर हम लड़ेंगे इसके लिए। इधर पार्लियामेंट में आज भी कावेरी तनाजे को लेकर भारी हंगामा हुआ। AIADM के अरकान ने पहले ऐवान के अंदर और फिर पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा किया। कर्नाटक हुकूमत पर कम पानी देने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत से मुदाखलत की मांग की है। हालांकि कर्नाटक हुकूमत का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से ज्यादा तमिलनाडु को पानी दे रहे हैं। AIADMK के मुजाहरे को सियासी बताते हुए कर्नाटक के लीडरान लगातार तमिलनाडु के लोगों से लीडरान के झांसे में नहीं आने की अपील करते रहे हैं। We are agitating the order given by the Water Resource Board to construct a new dam across the Kaveri River near Meghalaya. It is against the final verdict given by the Honorable Supreme Court. Without consulting the neighboring state, there should not be any concrete construction across the river. That has been violated by the Karnataka government. आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। तेलंगाना में शानदार जीत के बाद टीआरएस मरकजी रियासत में कदम रखना चाहती है और मरकज की सियासत करना चाहती है। दिल्ली में हुए पार्टी लीडरान की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए के कविता ने गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी इत्तेहाद पर जोर दिया और दोनों ही जमातों को अवाम मुखालिफ बताते हुए टीआरएस एमपी ने कहा कि 2019 में रियासती जमातों का किरदार काफी अहम होने जा रहा है, जिसके लिए टीआरएस लगातार काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। The whole nation watched when a leader of opposition, breaking all the established practices of parliament, suddenly goes around to hug a prime minister. Everybody felt it was a very silly move, and that is why our leader responded in a way he responded. Point one. Point two, when a time comes, the federal front is being floated, more taken up very seriously. Our agenda is to address to the people of this nation, not to the political parties. There have been various political groupings in this country which failed, few succeeded. Currently also there is a grouping called NDA. They have miserably failed in various promises they themselves made, starting from the women's reservation bill to various other issues. They have failed this nation. So this is a time we believe that a neutral platform should be established, which is free of both BJP and Congress. So Rahul Gandhiji's name is being proposed as a prime minister. We are not a part of that grouping. But then from the same grouping, two regional parties, very strong regional parties,
objected to his name. So, this is not about one person becoming a prime minister. This is not about one party rising to power. But this is about truly addressing the issues of these people, of this nation. We will make sure that we form an alliance which will not have either BJP or Congress. पार्लियामेंट में पास हुए बिल को लेकर के ट्रांसजेंडर्स ने मुजाहरा किया है और इस बिल को अदालती फैसले के खिलाफ बताते हुए उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर ट्रांसजेंडर्स ने मरकजी हुकूमत पर नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाते हुए हंगामा भी किया। बेंगलुरु में वाज़ेह है कि एलजीबी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने जमकर खुशियां मनाई थी। This bill is passed in Lok Sabha yesterday, the Transgender Bill 2016. It is completely violation of NALSA judgment. NALSA judgment says self-identification is ours, but this bill says who are undergone to castration, that person only identify as a man or woman. Otherwise, we have to claim as a third gender. It is a completely violation of NALSA judgment. And in this transgender bill, they are criminalizing begging also. But all of you know how many transgender persons, LGBT community members are doing the mainstream work. We have a lot of suggestions and demands which is not been covered in the transgender policy, transgender bill. It need to be covered because without the consent, the bill has been passed in Lok Sabha, which we have a lot of rejections because it's undermining our dignity, it's undermining our self-respect, because it's going to have a kind of a battle for the whole community. Because recently there is a lot of developments taken in this country, but suddenly this is a kind of downfall by passing the transgender protection rights bill. When you say this is a protection rights bill, it's not protecting the rights of transgender community. It is it's violating. It's not been covering the human rights aspects. It's not been covering the family aspects, reservation, employment reservation, education reservation, where all these aspects have been gone. सऊदी अरब में नौकरी कर रहे सैयद फारूक की मौत के बाद उनके अहले खाना ने हुकूमत से जज्द खाकी मंगाने की अपील की है। हैदराबाद के सैयद फारूक नामी हिंदुस्तानी शहरी की गुज़िश्ता 2 दिसंबर को मौत हो गई थी, जिसके बाद 18 दिनों के बाद महलूक के अहले खाना फारूक की जज्द खाकी का इंतजार 18 दिनों से कर रहे हैं। इस मामले में महलूक के कुनबे ने वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मदद की अपील की है और उनके बेटे इब्राहिम का कहना है कि वो अपने वालिद की लाश अपने मुल्क में दफनाना चाहते हैं, लिहाजा मरकजी हुकूमत इस काम के लिए सऊदी हुकूमत से जज्द खाकी लाने में उनकी मदद करे। My father's name is Sayyid Farooq Qasim. He was working in Saudi Arabia from last 6 years. He came back to India after 2 years, and now he was there for like 3.5 years. And his employer, he was working for Abdulaziz Al Ghufaili Transport, and then he used to talk to us every day. And on 2nd of December, he spoke to us, and unfortunately, after 2 hours, he died. And we got to know about this on 3rd of December. By his colleague. He called us and he told us, okay, this thing happened, and then his employer is claiming that he died due to heart attack. So we approached SIPAI, an NGO, and they have registered a grievance with external ministry. So we are waiting for the information, and we are waiting for my father's dead body to be repatriated to India. And it's been 16 days now, and we haven't received any update from local authorities. And when approached to Indian Embassy, they are saying that we are waiting for the reports from the local authorities, and they are still doing the investigation. So we request Srimati Sushma Swaraj, the Minister of External Affairs, to help us to send my father's body to India as soon as possible, because it's been 16 days and my family is worried about this. So we humbly request Srimati Sushma Swaraj to send the body as soon as possible to India. जिसका इंतकाल हुआ वो मेरे बहनोई थे। यहाँ पर घर में हमारी बहन और बच्चे वगैरह जो तो बहुत परेशान हैं। बच्चे 3 हैं, तीनों भी बच्चे पढ़ने वाले हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, आजिज़ी करते हैं कि हमारे भावने की जितनी जल्दी हो सके मैयत हैदराबाद को भेज दीजिए, इंडिया को भेज दीजिए। और हमारी बहन की ख्वाहिश है कि आखिरी एक बार दीदार हो जाए। इस वजह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके हमारे भावने की मैयत को इंडिया को भेज दीजिए।
इधर तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली ने आज सेक्रेटरिएट पहुंचकर के चार्ज संभाला। ओहदा संभालने से पहले रियासती वजीर दाखिला ने यूसुफैन दरगाह पहुंचकर फातिहा पढ़ी। उनका कहना है कि यहां पर पहुंचने वालों की सभी जायज मुरादें पूरी होती हैं। इस मौके पर महमूद अली ने सीएम चंद्रशेखर राव की जमकर तारीफ की और टीआरएस को मुस्लिम हामी बताते हुए खुद को वजीर दाखिला बनाने के लिए केसीआर का शुक्रिया अदा किया। खवातीन के तहफ्फुज़ के साथ साथ आम शहरियों से तालमेल के साथ अमन बनाए रखने पर जोर देते हुए अवाम से पुलिस का साथ देने की उन्होंने अपील भी की। आज अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादाद में जीतने वाली पार्टी इलाकाई पार्टी टीआरएस पार्टी है और उसके महान लीडर केसीआर साहब है, जिन्होंने 90 सीट हमारे पास आज 90 एमएलए है। और हमारे केटीआर साहब को जो नौजवानों की दिल की धड़कन है, सीएम साहब ने उन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है और मुझे भी होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया है। इसलिए हम लोग आकर यहाँ पर दरगाह यूसुफैन शरीफ दरगाह में हम लोग कदमबस में हैं और उनका शुक्रिया अदा करें कि आपके, क्योंकि दरगाह में जो भी आकर मन्नत करता है ज़रूर बुजुर्गान दीन उन्हें मदद करते हुए उनकी मन्नत पूरी करते हैं जो जायज़ हो। यकीनन हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब की तरह हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है जो गरीबों के मसीहा या गरीबों के गॉड फादर की तरह काम करते हैं। उन्होंने अपने 4.5 साल दौर में इतने अच्छे काम किए कि आवाम ने उन्हें बिना मजहब और मिलत और ख़ासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ ने दिल खोलकर टीआरएस के हक में वोट दिया। और आज मैं सेक्रेटरीट जा रहा हूँ, पहले से भी मुझे सेक्रेटरी में मेरा चैम्बर है, वहाँ बैठता हूँ और मिनिस्ट्री देने के बाद फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पर आकर कदमबस हुआ हूँ और हजरत से गुजारिश किया हूँ अल्लाह ताला की मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। केसीआर साहब ने मुझ पर जो भरोसा किया है, हमको बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो और ख़ास तौर से जो शी टीम्स को डेवलप किया गया है वो, क्योंकि औरतों की हिफाजत, हमारी बहनों की हिफाजत का हमारा अव्वल फरीज़ा है और आवाम को मुकम्मल पुलिस से इंसाफ मिलेगा। तो नाजरीन, सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का ये सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ। थोड़ी देर बाद देखेंगे आप मुल्क की सियासत सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।